Hi sir, hi, what's your name sir? कुछ लोगों से बात, we'll talk to them sir. You comfortable? Hi sir, what's your name? Anuj. And ma'am? Jalpa and Anuj. Nice talking to you. ये लोग पता है इनके एक्सेंट से इतने अमीर लग रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी कम हो चुका है. एक डर से नहीं जाता इंसान. अमीरी में ना वाली शक्ति होती, बाली में नहीं थी, बाली से लड़ते इंसान खुद ही आधी शक्ति इनको दे देता था. Anuj and Jalpa. First time I've heard this name Jalpa. What is the meaning of Jalpa? Is it like Jalpa? Like, see, Bandra I understand is Jalpa. But if you go further, okay, if you go towards Kandivali, Borivali side, is it Jalpa? मुझे ऐसा नहीं लग रहा जलपा है नाम. जलपा है ना अनुज जी? अनुज ने भी अपना नाम पता है अनुज है. तो अनुज और जलपा बताओ. हाँ, you guys married, dating? How long have you been dating? 3 years? You have been dating for 3 years. How did you guys meet? At work? What work do you do, Anuj? He was your boss? But is this not like grounds for posh? Huh? HR is back there. Like your company's HR is back there. Some random HR is back there. Where is HR? Hello मैम, ये posh के grounds नहीं है कि बॉस के साथ चक्कर चला लिया? नहीं है कि नहीं, बताओ. या आपको खुद नहीं पता? हमें नहीं पता. गौरव को करानी पड़ती 3 बार वर्कशॉप, क्या कराया है? हम खुद परेशान हो रखे हैं. He was your boss, like, and what were you doing, Anuj? General manager, director of sales. Sales, nice ma'am. Which hotel was this? Marriott, which one? This. अच्छा, न्यूयॉर्क से हो आप लोग? ओह, न्यूयॉर्क से जालपा आया है. अब समझ आया ना. यहाँ तो नहीं चल रहा कोई जालपा कोई. फर्स्ट जालपा है मीटिंग. So now you guys shifted to New York of Mumbai. बैंड्रा वालों को नहीं लगता है न्यूयॉर्क ही लग रहा है ना? ये न्यूयॉर्क ही है. What is better? न्यूयॉर्क is better or बैंड्रा is better? ठीक है मैम, आप गए हो क्या? एक तो इंडिया में वाला बड़ा कल्चर. मैं भी गई हूँ, हम भी गए भाई, फॉरेन गए हैं. You think Bandra is better? Like, give me like, why is Bandra better? How long have you stayed in New York? 30 years you stayed. Now you come to Bandra. You guys stay in Bandra? You are visiting. You guys still stay in New York? Okay, then why are you visiting Bandra? If I may ask. To see my show. Oh, 2 months ago I was in New York. Don't you think this is a very costly proposition? And you were director of sales. Yeah? 4 years ago you were in... 4 days ago you were in Delhi, RK Puram. Oh, very unrelated information, but that's fine. Now you are just giving me random whereabouts of... Okay, you are giving me information so that I know that you understand what I am. No, I'm not scared. Initially I was scared, but now to... Initially I thought you are rich people from Bandra. Now I realize you are middle class of New York. Same struggles every day you guys have had. हमारा नहीं है, हम तो. But yeah, all the best. So you guys have like your family here or what? No. Just randomly visiting Bandra. Who visits Bandra? Even Bandra people have started moving out now. Like you like this place a lot. Like what do you give me 3 good things about Bandra? What do you like here?
I am here, you are here, Anuj is also there. मुझे तो बड़ा गलत लगा. I am not there. You and Anuj are there, and I am here to perform only on stage. But nice. You are a fun couple. Nice. Welcome to the show. पता नहीं मन कर रहा और सवाल पूछूं पर नहीं. अनुज भाई भी कह रहे ये उड़ता तीर मैंने क्यों ही लिया. You two also together. आप लोग देखे क्यों लग रहे. Are you like famous people? You guys are also from Bandra? Like this Bandra or this New York Bandra? You guys from Bandra only? Bandra, nice. What do you guys do? You make movies? What movie have you made, sir? हम तुम फना मुझसे दोस्ती करोगे? क्या नाम है आपका? कुणाल कोहली. ऐसा लग रहा है मैं ही मेरे को नहीं तगड़े आदमी हो क्या आप कोई? देखे नहीं मतलब मैंने आपको देखा तो है मतलब टीवी में भी आते थे आप. रियलिटी शो में कौन से में आए थे आप? रियलिटी शो जज करे थे आपने कौन सा? हाँ वाट नहीं नच बलिए. अरे आप तो सही बंदे हो. तो आप लोग यहाँ की कर रहे हो मेरे शो में? मैं भी सही बंदा हूँ. तारीफ ही कर दिया आपने. मैं तो धंधा बोलने वाला था. नहीं गिरगांव बैंड है. नाइस. वेलकम टू द शो कुणाल जी. अपने यहाँ भी कुणाल जी निकल गया. Jalpa guy, you asshole, you are partial to what us. This Kunal ji and I am Jalpa. Jalpa you are calling me? Nice. What made you come to the show? Like what video convinced you to come to this show? I keep seeing you on Instagram and love you. Oh, you love my videos. You keep watching my Instagram, like, you know? Yeah, I follow you. Oh, thank you. Really appreciate that. आपको हिंदी नहीं, मेरे को भी इंग्लिश आती है. आपको हिंदी आती है तो क्या? आई एम नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी. आई एम ओनली कंफर्टेबल इन इंग्लिश. भाई फ्रंट रो पे बताओ सारी बाहर वाली ऑडियंस है ये. बैठ एक बाहर विदेशी वाला चुप करता रुको. यार मैं अभी यूरोप गया घूमने तो मैंने वहां जाके देखा आपका प्यार ही था जिसको मैंने कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करा. हर 6 महीने में करता हूं. सुनो तो मैं गया भाई यूरोप घूमने. भाई मैंने वहां देखा लोग पैदल चल रहे हैं. हाँ भाई दिन को 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं क्योंकि वहां पे पैदल चलने की जगह है और पेडेस्ट्रियन को साइकिलिस्ट को इज्जत दी गई है. पता है आपको? वो लेजिट उनके सिटीजन मानते हो ना वो लोग. ऐसी बात नहीं है जो साइकिल पे चल रहा है हट बैच. यहां तो साइकिल या तो मैंने चोरी होती देखी है इस देश के अंदर या फिर साइकिल का टायर देखा कभी साइकिल ठुकती है तो उसका टायर ऐसे अजीब सा टेढ़ा सा हो जाता है. नहीं भाई मैं सच में वहां देख के हैरान रह गया. पता है वहां भाई सड़क गाड़ी के लिए नॉर्मल रोड, साइकिल लेन, पेडेस्ट्रियन लेन, ग्रीनरी जो कि ग्रीन ही है भाई पूरा. और हर कोई अपनी अपनी लेन में जा रहा है. लोग एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं. साइकिल की रेड लाइट, जब साइकिल की ग्रीन लाइट थी तो गाड़ियां रुक रही थी कि साइकिल जाएंगी. मैंने कहा तो कितनी अच्छा यार, ये कैसा इकोसिस्टम. सब लोग इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है एक दूसरे के लिए. नहीं मैं कहा ठीक है यार, बड़ी अच्छी बात है. ये चीज मैं अपने देश में लेके जाऊंगा यार. मुझे ये माहौल चाहिए भारत देश के अंदर. मैं ये माहौल भारत में लेके आया. फरीदाबाद में मैंने स्टार्टिंग करी.
भाई ऐसी बात नहीं, फरीदाबाद में पैदल चलने की जगह नहीं है, फुटपाथ है, पर वो कहाँ खत्म होंगे आपको नहीं पता। भाई मैं एक फुटपाथ पे चढ़ा, वो ठेकेदार ने ना टेढ़ा बना रखा था, टेढ़ा, समझ रहे हो? जब शुरू सड़क के साइड में हुआ था, पर जब वो फुटपाथ एंड हुआ ना, हल्का हल्का ऐसे और ऐसे, तो जो बाइक ट्रैफिक आ रहा था वो बच बच के ऑलरेडी निकल रहे थे यहाँ से। अब मुझे ये वाली बात पता ही नहीं, मैं चढ़ा फुटपाथ पे, मैं उतरा, भाई पूरा ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा मेरे, बाकी सब तो निकल गए, एक बाइक वाले से कंट्रोल नहीं, उसने मेरी बाइक यहीं पर डाल दी, पता है? यहाँ घुसा, बाइक का टायर मेरे यहाँ पे घुसा, एकदम यहाँ, बंदे का चेहरा मेरे यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली हेलमेट तो नहीं पहना था उसने। भाई हमारी बस मैं बता रहा हूँ चुम्मी होने ही वाली थी, कुछ ऐसा ही था, एकदम होता नहीं। मेरे से अचानक से कह रहा भैया क्या हो गया? मैंने कहा ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। मेरे से इतनी मुंह के पास कह रहा भैया क्या हो गया, और मैं यहाँ पे टायर घुसा पड़ा है, मैं खड़ा हूँ ऐसे बाइक के ऊपर उसकी। मैंने कहा भैया चले 26 जनवरी की परेड पे चले क्या? तैयारी तो हो ही गई है हमारी, राष्ट्रपति को सलामी मार के आते। आपने कहाँ सीखा? फरीदाबाद के फुटपाथ पे सीखा। आप मानो चाहे मत मानो, इंडिया में पेडेस्ट्रियन की और साइकिलिस्ट की 1 रुपए की इज्जत नहीं है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही कम है, और जो लोग सड़क पे, जो हमारे अंदर भी सड़क सभ्यता 1 रुपए की नहीं है। जो लोग गाड़ी चलाते हैं, किसी को कोई है ही नहीं, कोई सेंस दिखाती नहीं उनकी तरफ। आप फुटपाथ पे चले जाओ भाई, पूरी मारियो वाली गेम चल रही होती है। आपने बचपन में खेला मारियो गेम, खेला मारियो? फुटपाथ पे चले, पूरा वही गेम चल रहा है। सबसे पहले फुटपाथ पे चढ़ो, एक गोलगप्पे वाला बैठा होता है, पानी पूरी वाला, सबसे पहले वो बैठा होता है, उससे गोलगप्पे खाओ, थोड़ी पावर ले लो, मारियो फूल नहीं जाता, हल्का सा आगे निकलो, एक बंदा पड़ा होता है क्रॉस में, ऑब्स्टेकल है। अब आपको पता नहीं कि ये दारू पी के पड़ा है कि लाश है, पर आप तो घटिया इंसान, तो हमें क्या मतलब आगे निकलो। मैं आगे जाओ, मैन होल खुला होता है, उसके अंदर घुसो, टेन 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 टेन, गेम ओवर। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में भाई मेरी दोस्त का सच में हुआ ये चीज, सच में लिटरली। वो कॉलेज टाइम की बात है हमारे, वो थोड़ी जॉली सी लड़की थी एकदम, जस्सी नाम था उसका। हमेशा खुश, जिंदगी में हमेशा खुश लोग नहीं होते। हम जा रहे सड़क पे चलते थे, कुछ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही मेरे को, फालतू की कोई बात ऐसे रेगुलर चलते थे ना, उल्टा घूम गई, जैसे हम ऐसे चल रहे हैं वो घूम गई, तेरी गौरव तुझे पता ये हुआ वो हुआ, गायब। मैं कहूँगा जस्सी आ गई जस्सी। भाई आगे जाके देखा, वो तो कसम बता रहा हूँ, सूखा गटर था इसलिए दिख गई मेरे को, नीचे पड़ी, ऐसे चिल्ला पड़ा, यहाँ से हाथ पूरा बाहर निकालिए मुझे जरा। मैंने कहा अंदर जाके वहां वाले से निकाला, एक काम कर। कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई पेडेस्ट्रियन की एक मैन होल बचाने के लिए, मैन होल दिखाने के लिए आपको पता क्या करते हैं? ढक्कन बंद नहीं करेंगे, उसके अंदर एक पतली डंडी डाल देंगे, देखिए आपने। और मैंने लकीली या अनलकीली उस मैन होल में जो चलते लोग हैं वहीं घुसते हैं। फुटपाथ से सारी बाइकें जाग रही हैं, वो कभी नहीं घुसती उसके अंदर, वो साइड से काट के निकल जाती है। पेडेस्ट्रियन की ना साइकिलिस्ट की 1 रुपए की। आपको पता है इंडिया में 50% लोग साइकिल से कम्यूट करते हैं, 14% गाड़ियां हैं, 14-15% लोगों के पास गाड़ियां व्हीकल्स हैं, उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। गुड़गांव में भाई अगर साइकिल वाला बंदा अंडरपास में घुस जाए अगर वो अंडरपास में यूटर्न मारते वो 65 साल का हो जाता है। और गाड़ी वाले इतने बदतमीज है, पता है आपको, एकदम साइकिल वाले की एकदम पिछवाड़े के पास जाके हॉर्न मारते, एकदम पास जाएंगे, पम। कभी आपने साइकिल वाले की ढूंढ बिचती देखी? एकदम ढूंढ बिचना, लाइक कभी अपने साइकिल वाले का पिछवाड़ा इकट्ठा होते देखा, आई बच गया, जिंदा बच गया, आज बच गया। वो तो नए जमाने के सारे वो अमीर साइकिलिस्ट है जिन लोगों ने लाइटें लगवा ली अपने ऊपर पूरी। देखे आपने, जो बंदे साइकिल करने निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं कि आज मौत हो सकती है, पर फिट रहना भी जरूरी है। यहाँ लाइट, 2 लाइटें यहाँ लगा दी, साइकिल पे लाइट, सब चमक रहा है। अरे मार मत देना भैया, घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की भाई, यूटर्न बनाया ही नहीं है साइकिलों के लिए, यूटर्न मारने के लिए जा रहे 4-4 किलोमीटर आगे। मैं बता रहा हूँ यार आपको, सच में किसी को रिस्पेक्ट नहीं है। और मेरे हिसाब से दोस्तों, रॉन्ग साइड को तो लीगल कर देना चाहिए। वो वक्त आ चुका है इस देश के अंदर, ये रॉन्ग साइड का नाटक खत्म करो। दिल्ली की बात है, मैं एक जगह जा रहा हूँ, बंदा आ रहा था रॉन्ग साइड से, मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो? कर क्या बे? भाई वो इतनी तेज चिल्ला के बोला, मैंने कहा मैं तो गलत नहीं आ रहा। कसम से भाई, मैंने भाई शादी के कार्ड में लिखा देख लिया, फ्रॉम ब्रिजवासी कचौड़ी टेक 200 मीटर रॉन्ग साइड। RSVP दिस फैमिली। सोच रहे बंदे ने भाई पूरी बारात ही रॉन्ग साइड बुलवा ली, वहां फेरे चल रहे, पीछे 2 बाराती गुजर गए, पता ही नहीं चला।
वो भी खुश है, चलो कोई नहीं 2 प्लेटें कम लगेंगी। कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई। जीब्रा क्रॉसिंग को तो मजाक समझते हैं हम लोग। जीब्रा क्रॉसिंग तो एक्टिंग है, बस कुछ नहीं है वो। मैंने यही सीखा था। मैंने वही एम्स्टरडैम में एक चीज देखी थी, लोग ना जीब्रा क्रॉसिंग के पहले रुक जाते हैं। लोगों बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी करूंगा ये चीज। मैंने एक दिन गाड़ी रोकी वहां पे, 30 सेकंड का सिग्नल और बचा हुआ था। सारे बाइक वाले ज्याऊ ज्याऊ ज्याऊ, एक गाड़ी ने काट के आगे लगा दी, सब आगे लग गए भाई मेरे। जब वो सिग्नल ग्रीन हुआ वो सब निकल गए, मैं जीब्रा क्रॉसिंग में वापस फंस गया। लगा ये तो जिंदगी है। एक बार मैंने पता है जीब्रा क्रॉसिंग की आधी बनी देखी थी, पता है आधी जीब्रा क्रॉसिंग बनी हुई थी, क्योंकि जो बना रहा था उसको ही उड़ा दिया था। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की यहाँ पे, एक अठन्नी की इज्जत नहीं है। बाकियों को बोला मेरे खुद के दोस्ती होते। आपको पता है पूरी दुनिया में येलो लाइट का मतलब क्या है? यू आर लुक लाइक वेल ट्रैवल्ड पीपल, यू नो येलो लाइट का मतलब क्या है? गाड़ी स्लो करनी होती है। और यहाँ जितने 600 लोग बैठे हैं, अपनी आत्मा से पूछ के बता देना, तुम्हें आज तक वो येलो दिखी ही नहीं है, तुम्हें वो ग्रीनिश येलो ही दिखती है। जिसको दिखे भगाओ, मैं क्या मर जाए मौत हो जाए, हमारे 30 सेकंड बचने चाहिए। सब निकाल देते हैं भाई। ऐसे ही करा मेरे एक दोस्त ने, पता है एक बार ऐसे ही करता, हम गाड़ी में जा रहे थे, उसने ऐसी टाप दी बत्ती, बंदा जा रहा था जीब्रा क्रॉसिंग पार करता, उसको ठोक दिया एकदम अचानक से, वो ठुक के साइड में गिरा है। आपको पता है जस्ट गैस दिन की कितनी मौतें होती है पेडेस्ट्रियंस की, जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग? एनीवन वांट टू टेक अ गैस? 500। और अब ये कौन है मौत का सौदागर? फिर रैंडम नंबर बोल दिया 500। ये तो फिर भी ठीक है। कल मैंने पुणे में शो करा, एक लड़की गाड़ी 10,000। मैम वो GTA गेम अलग है। मैंने कहा ये चली सड़क पे, ये उड़ाओ खत्म करो, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट सर गाड़ियां दिखेंगी, सबको उड़ा दो, साइकिल पैदल सबको उड़ा दो। इतने नहीं 80 लोग मर रहे हैं, 80 लोग दिन के पेडेस्ट्रियन बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग ऑफ पीपल, क्योंकि सभ्यता नहीं है सड़क पे। भाई सही बताओ 80 लोग मर रहे हैं दिन के, 80 लोग। बाय द टाइम द शो एंड्स 3 पीपल आर श्याम। समझो, सही से चला लो। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे दोस्त ने ठोका ना उस बंदे को जो पैदल जा रहा था, उसको ठोका भाई, हमने पट्टी वट्टी कराई उसकी, और मेरे को इतना खुंदक चढ़ी यार। मैंने सेम बात बोली उसे, मैं कहा तेरा तमीज नहीं है, एक तो पेडेस्ट्रियन के लिए वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं रही, हम लोग ढंग से चलाते नहीं, इनकी कोई इज्जत करते नहीं, दिन के इतने लोग मर जाते हैं, तमीज नहीं ढंग से चला रही अगर गाड़ी यार, तू थोड़ा स्लो कर ले, तेरा क्या चले जाता? कह रहा सॉरी भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। मैं कहा चल ठीक है चल। फिर अगले सिग्नल पे जाके मुझे कह रहा एक बात बताइए भाई, ये पेडेस्ट्रियन क्या होता है? मैं कहा भाई बच्चों का डॉक्टर। मुझे पता है कम से कम 50 है जिनको जोक समझ ही नहीं आया। कम से कम 50 प्रेशर में बजाओ भाई, अच्छा है कुछ। ये भी साइंस वाला जोक होगा, हमें क्या मतलब, साइंस मेडिकल वाला है ये। किसी को भाई पेडेस्ट्रियन सिर्फ अपने साथ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है इस देश के अंदर, सिर्फ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है। उस दिन दिल्ली की बात है, मेरा भाई घर के बाहर निकला वॉक करने के लिए, रात को 11 बजे की बात थी, फोन पे था मेरे साथ, कह रहा हेलो भैया मैं वॉक करने आया हूँ। मैं कहा भाई वॉक तो करना बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश। उसने ये बात बोली थी, यहीं से फोन खिंच गया। उसका खुद का हाथ ही अपनी कनपट्टी पे लगाया, मैं ही फुद्दू हूं जो रात को निकला। पर जो चोर था वो अच्छा इंसान था, उसने मुझे बोला हेलो भैया फोन चोरी हो गया, बाय। आपको पता है फिरंगी ब्लॉगर आके इंडिया में क्या वीडियो बना रहे हैं? हाउ टू क्रॉस रोड इन इंडिया। 3.5 मिलियन व्यूज। उसकी स्टार्टिंग यही है, लुक लेफ्ट लुक राइट, प्रे टू गॉड अ लिटिल एंड ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस, यू माइट बी एबल टू रीच ऑन द अदर साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सड़क सभ्यता। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लोग रोड ट्रैफिक के बारे में, रोड रेज के बारे में बहुत डिस्कशंस करते हैं, पर सड़क पे किस तरीके से हमें बिहेव करना है उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं होती, स्पेशली टुवर्ड्स पेडेस्ट्रियंस एंड साइकिलिस्ट। एक तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, ऊपर से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कई लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट बी फॉर पब्लिक गुड। जैसे कि फुटपाथ पे लोग गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं। इनफैक्ट दिल्ली की बहुत सारी पॉश कॉलोनीज में क्या होता है, लोग घर से बाहर सड़क तक का एक स्लोप बना देते हैं फुटपाथ को कवर करके, ताकि उनकी गाड़ियां घर के बाहर निकल पाए। तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो पैदल चलने वाला बंदा उसको सड़क पे चलना पड़ता है, वो ठुकते हैं, चलने की जगह मिलती है नहीं। इनफैक्ट आपने कई बार खुद देखा होगा कि पेडेस्ट्रियन साइड में खड़ा रहता है एंड कार्स कमिंग एट हायर स्पीड दे डोंट इवन अलाउ देम टू क्रॉस द रोड। If you like the video, then do share it with your friends and definitely with the people who do not follow traffic rules, who are not careful towards pedestrians and cyclists on the road.
Thank you so much. New video would be out very soon. Anyone like recently dating, married, whatever, 2 years, 3 years, 4 years? I'm you. What's your name? Karishma. With? Himanshu and Karishma. You guys together? Yeah. Dating. You're married? कितने टाइम से? 1 साल हुआ है। 1 साल होने वाला है। तो लड़ते हो कभी? नहीं अभी लड़ते हो? बहुत ज्यादा। 1 साल में ही? ये बहुत सालों से जानते हैं। जानते हो मतलब कब से? 8 साल। 8 साल से? किस बात पे लड़ते हो बताओ, एक रीजन स्पेसिफिक जिस पे लड़ते हो। घर के काम। एक रीजन। घर का क्या काम? गंदगी करता है। गंदगी करता है? तो आपको 8 साल में पता नहीं चला? ऐसा क्या गंदा कर दिया भाई आपने? हिमांशु ना, हिमांशु? हाँ जी हिमांशु भाई, क्या गंदा कर दिया आपने ऐसे? मुझे वॉशिंग मशीन में डाल देते मोजे वॉशिंग? तो मोजे कहाँ डलते हैं? अरे उल्टे करके डालता है, वो सीधे करके नहीं डालता। ये नहीं पता था। तो मैम वो तो पानी है। आपको ऐसा लगता कि पानी एब्जॉर्ब कर लेता है मोजा? तो क्या पता दोनों साइड से धुल जाए? नहीं मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो हाउ वॉशिंग मशीन्स वर्क। आपको भी अभी पता चल रहा है? एंड इट्स अ लिक्विड सोप, सो इट विल गो ऑन द अदर साइड आल्सो। It's not going. इट्स नॉट गोइंग। यू आर गोइंग अगेंस्ट दी वॉशिंग मशीन कंपनी ओनली। या फिर तो ये पत्थर की जुराब पहनता है जिसकी ऊपर वाली साइड पे ताला लगाता है ये, तब अंदर नहीं जाएगा। कपड़े की जुराब भी होती है ना, आपको कैसे पता पानी नहीं जा रहा है अंदर? मैं उसको सीधा करती हूँ, when I fold it, then it's dirty. आप सीधा करते हो एंड यू फोल्ड इट एंड इट्स डर्टी। ऑन दिस पॉइंट शी जस्ट गॉट ट्रिगर्ड। Why is she folding it? This is patriarchy! It's just a joke. And that's a good one. Yeah, and it's still dirty. Then don't you think there is some problem with the washing machine? Instead of changing your husband, you can change the washing machine. Like not changing your husband means asking him to change himself as a human being. Should you not change washing machine? No, he can change that habit. He can change that habit. But उससे कुछ होगा नहीं. Is what I am saying. Washing machine is still dirty. I mean, washing machine is still not working fine. I think it's the washing machine issue. You're just putting it on him. That's a wrong matriarchy. You're a guy, you will not know. But I am also someone who has washed clothes, regardless of being a guy or a girl. So I know how water goes inside the socks. Anybody would know. सीधे करके डालती हूँ, उल्टा नहीं। मैं तो ऐसे गोला हो जाता है मेरा अंदर। अब मुझे पता नहीं वो क्या फॉर्म है, पर ऐसे उतरती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो पैंट चड्डी जुराब तीनों ही उतार देता हूँ साथ। हाँ, पैंट चड्डी जुराब तीनों उतारी एंड एज अ कॉम्बिनेशन इट गोज इनसाइड। इट्स ऑलवेज क्लीन। It's always clean. Himanshu, always remember, there was one guy who stood up for you with 139 other people. और किसी की लड़ाई होती है छोटी बातों पे घर पे? Anyone else? Dating, married, whatever? Where is ma'am? Then we can't take this question. You want both of them to be here. Otherwise आप तो चुगली करोगे ही. मेरी वजह से लड़ाई होती है, मैंने कुछ नहीं करा. मैं बोलता हूँ
मैंने ब्लॉग में क्या बोला? मैंने दारू छोड़ दी। फिर तो उनको बताओ, उसने बस 15 दिन छोड़ी थी। हाँ, मैंने भी छोड़ी 15 दिन, मैंने फिर चालू कर दी। मेरे को समझ आया, कांट लीव अल्कोहल, आई एम एन अल्कोहलिक नाउ। इट्स गुड टू एक्सेप्ट इट एंड ड्रिंक लेस। ये कल भी तो मिलेगा। Then no, I can't take this, na. Otherwise, I need couples who fight. Nobody else. कोई तो होगा, पीछे भी नहीं है कोई। You have one over here. Who is this third guy? And why is he concerned about your relationship? Yeah, tell me, ma'am. What's the name of the couple? Like, what's the name, ma'am? Aarti and Ala? आरव एंड आरती। अरे ठीक है भैया। आरती एंड आलम। आलाप। हट गए। Is it good? Correct? Aarti and Alap. How long have you guys been together? 5 years. Dating, married? Married. किस बात पे लड़ते हो? क्या बताओ, किस एक स्पेसिफिक रीजन तो किस पे लड़ते हो? Actually, there are many. क्या? There are many reasons. Tell me one. I am not your therapist, okay? I am just looking for one joke. Yeah, tell me, Aarti. We'll keep waiting. They are fighting. पर आप लोग, आपके दोस्त लोग कितने घुसे हैं तुम्हारी जिंदगी में? एक तो इनको निकालो ये। आई थिंक दीज आर द ट्रबल मेकर्स। इस ग्रुप में क्या है? आरती की दोस्ती 1-2 लोगों से है, आलाप की दोस्ती तो वो उसके कान भर रहे हैं, इसके कान भर रही है। नहीं, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम आलाप। आलाप, टेल मी। No, I don't fight actually. I don't fight. तो देन व्हाट? शी फाइट्स विद हरसेल्फ ओनली और व्हाट? You are also married, you know. That's an unacceptable joke. I didn't crack that one. He's the guy. I think Alap is wrong only in that relationship. Aarti, you tell. What is that one specific reason on which you fight? Or Alap fights? एक तो आपकी आवाज ही लग रही है मेरे को। ऐसे नहीं, एक आवाज ही नहीं, बात सारे हैं। सॉरी, आई एम अ बैड पर्सन। मैं क्यों कर देता हूँ ये सब यार? इट्स अ नाइस वॉइस, बट द प्रॉब्लम इज यू आर विद आलाप। In front of Alap, this is like. आरती, टेल मी, क्या रीजन है? बताओ, मजाक कर रहा था। क्या चेंज ही हो गई, इंसान ही बदल गई। बोलो। Oh, recently I'm going for bachelors. तो कहाँ जा रहे हो बैचलर पे आप? ठीक, तो फिर इसमें क्या, क्यों लड़ाई हुई? No, because she doesn't want me to go. Aarti, but why don't you want Alap to go with his friends? Huh? Oh, please don't go deep. नहीं, we'll go deep into this now. I don't care about a relationship. All I want is 3 laughs. And I will get it, I know. Yes. Aarti, you tell me, why don't you want him to go? उसने तो बताया, आप ही ने मना करा है। क्या है पीछे का रीजन? बताओ। अलाप, हैं? टेल मी ना, क्या हुआ? तूने कुछ तो मेरे को लग रहा है पिछले ट्रिप पे गलत करा है। ये पकड़ा गया है भाई, ये पकड़ा गया है भाई, ये पकड़ा गया है। ये इस पे चल रहा है, इस पे चल रहा है। सेकंड शिफ्ट में नहीं मिलती किसी को, फर्स्ट वार्निंग मिलती। दिस टाइम आई एम फॉरगिविंग यू। I'm not forgetting it, I'm just forgiving you. ठीक है भाई, इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे।
मेरा तो क्या 1 घंटे का शो है, तुम्हारा तो रिश्ता है। और तुम्हारी बात करूंगा तो 3-4 और बैठे उनको भी याद आ जाएगा। आई नो वॉट यू ऑल्सो, या आई नो एवरीथिंग। मुझे बहुत मजा आता है सब करने में। ये सब टॉपिक्स करते हैं ना, लोग फट जाती है, पता है, एकदम टैबू में आता है एकदम। एज इट्स अ प्योर एंड पायस रिलेशनशिप, इज इट? यू नेवर नो। एक नो तो मुझे अभी दिखाई दे गया। बस दिमाग में बात डाल के छोड़ दो, घर जाके तुम्हारा था क्या, तुम्हारा नो था क्या, मेरा नहीं था। The next joke and the last joke that I'm gonna do. All good things come to an end. Average things also. Everything comes to an end. ओके दोस्तों, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो। टूर की डिटेल्स दे रहा हूं। बेसिकली यूएस एंड कनाडा टूर, डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया और नेपाल भी कर रहे हैं। इंडिया का जो है टूर पूरा लाइव है। नेपाल के अंदर काठमांडू वी आर डूइंग ऑन 22 ऑफ मार्च। उसके अलावा यूएस एंड कनाडा का बताया तो भाई बहुत एक्सटेंसिव टूर है, 20-21 दिन का टूर है। सोचा था पोस्टर डालूंगा बढ़िया सा, पर पोस्टर भाई अभी तक नहीं बन पाया है, तो ऐसे ही बताया था आपको। सिटी जो कि कर रहे हैं वो है शिकागो, डिट्रॉय, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया, डीसी, न्यू जर्सी, एटलांटा, डलास, ह्यूस्टन, LA, सियाटल, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, सैन होजे शायद ऐड होगा, ऑस्टिन, राले एंड डेनवर। तो ये ऑस्टिन, राले, डेनवर के डेट्स नहीं है, बट ये सब है इधर। बाकी फिर कनाडा टूर, भाई कनाडा निकलेंगे उसके बाद। कनाडा में कर रहे हैं कैलगरी, वैंकूवर, एडमंटन, विनीपेग एंड टोरंटो। So this is a very extensive tour, and in July and August 2024, tickets are already selling fast for a lot of cities. For example, Toronto, Vancouver, और कौन सा, Seattle, SFO, Jersey, New York, and I think Dallas का भी feeling fast नहीं है। बाकी कुछ cities के जो है लिंक्स अभी लाइव नहीं है, थोड़े दिन में लाइव हो जाएंगे। जो भी डिटेल्स है फर्स्ट कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मेरे इंस्टा बायो के अंदर है लिंक में। अगर अभी तक आपकी सिटी लाइव नहीं है पर उसका डेट ऑलरेडी आ चुका है, स्पेशली यूएस कनाडा टूर की, तो आप अपना ईमेल आईडी, एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में भी होगा, उस पर क्लिक करो, एक फॉर्म है, उस पर अपना ईमेल आईडी आप छोड़ दो, नाम छोड़ दो, एंड वी विल सेंड यू प्री सेल टिकट लिंक एज सुन एज दैट सिटीज आर लाइव। इन केस यू हैव सीन माय लाइव शो इन इंडिया, डू टेल योर फ्रेंड्स इन यूएस एंड कनाडा। आई एम श्योर सबके दोस्त वहां पे होते हैं भाई। कनाडा तो 100%, बहुत सारे ब्लॉग बनाएंगे। अच्छा ही तो स्टैंड अप चैनल, स्टैंड अप वीडियो वहां बनाएंगे। सी यू गाइस। यूएस कनाडा टूर जुलाई अगस्त, नेपाल ऑन 22 ऑफ मार्च, इंडिया टूर इज ऑन गोइंग। तो हाँ, बहुत लंबा हो गया भाई, 1.5 मिनट का हो गया, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड न्यू वीडियो विल बी आउट इन सम टाइम। टेक केयर दोस्तों। 3 साल पुरानी बात है, मैं लुधियाना गया था शो करने। शाम को 6 बजे का शो था। 4 बजे मेरे अंदर एक चुल मची। मैंने कहा पहले जिम करेंगे, उसके बाद शो करेंगे। मैं होटल के जिम में गया। जिम में भारी एक बंदे का पोस्टर लगा था, वो एकदम वो नहीं था मोटिवेशनल वाला, आंखों में देख रहा है मेरी, और लिखा हुआ है नेवर गिव अप। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और वहीं बोला आई नेवर स्टार्टेड ओनली, टुडे इज माय फर्स्ट डे हियर। दरवाजा खोल के मैं अंदर घुसा। जिम में भाई बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए थे, अलग अलग एक्सरसाइज के पोस्टर लगे हुए थे, है ना। पता नहीं क्या हुआ, मैम मेरी नजर गई लंजेस पे। यू गाइस नो लंजेस? पता है आपको लंजेस, जिसमें टांगे खोल के नीचे जाना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड लेट्स नॉट गो फॉर सच अ लो हैंगिंग फ्रूट जो you basically have to stretch your legs and you have to go down, right? And lunges is a great exercise. It should not be first exercise. जो भाई लोग जिम जाते हैं, भाई बहन लोग, उनको पता होगा it should not be first exercise, है ना भाई। मेरे दिमाग में ये सब आया ही नहीं, ना मैंने वार्म अप करा ना कुछ करा। मैंने भाई सीधा टांगे खोली। और आपने वो सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि? भाई मैंने 10-10 किलो के डंबल और उठा लिए। डंबल उठाए, टांगे खोली, नीचे गया, वहीं रह गया। मेरे शरीर से आवाज निकल के आई चिड़िक, और मेरी आत्मा ने बोला मरवा ली अपनी। मुझे कसम से लगा अब मैं जिंदगी में रेडिसन लुधियाना में ही रहूंगा। मेरी यहां पे मूर्ति प्रतिमा सी बना दी जाएगी, मुझे जिम में एज अ वेलकम मैन रखा जाएगा।
कोई भी बंदा जब जिम आएगा मैं उसे बताऊंगा हाँ भैया 10 वाले डंबल वहाँ है, 5 वाले डंबल वहाँ है। नहीं भाई कसम से मेरी हालत खराब थी। वो मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ कब से हो? भैया मैं 2022 से लटका पड़ा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं कसम से वहाँ पे सीसीटीवी देख रहा हूँ, मेरे को जिंदा बचाने आएगा या सब भूतनी को छोड़ के भग गए यहाँ से। भाई मैं जानता हूँ अगले 15-20 मिनट 30 मिनट लगा के मैं कैसा टेढ़ा मेढ़ा होकर होटल रूम पहुँचाऊँ और दर्द से पागल हो रहा हूँ, पागल कर रहा हूँ। और 1.5 घंटे के अंदर शो करना है। मेरा शो तो मैं करके रहूँगा, पेमेंट ले ली एडवांस, मैं छोड़ता नहीं फिर किसी की। तो उस दिन मैं लुधियाना में ढूंढा फिजियोथेरेपिस्ट। मैं फिजियोथेरेपिस्ट दिखाएंगे सही कर देगा। मैम उस दिन पता नहीं क्या कॉन्क्लेव चल रहा था फिजियोथेरेपिस्ट का, एक फिजियोथेरेपिस्ट ही ना मिले भाई, कोई ना मिले। बड़ी मुश्किल से प्रैक्टो पे एक मैम मिली। मैंने उन्हें फोन करा, मैंने कहा आप हो क्लिनिक पे? कह रही आप आओ तो सही। मैंने फिर से प्रैक्टो चेक करा तो प्रैक्टो ही खुला है ना, ये जस्ट डायल खुल गया है। मैंने कहा मैम फिजियोथेरेपी नॉट एनी अदर थेरेपी। कह रही अब आओ तो सही होती है। मैंने कहा ठीक है चलो फिर आता हूँ। कोई ऑप्शन ही नहीं था, गया उनकी क्लिनिक गया। फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था। पर वहाँ पे जो मेन मैम थी ना, जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट थी वो नहीं थी, उनकी तो असिस्टेंट थी। और आप खुद गैस करो मुझे लंजेस में कहाँ चोट आई होगी। एनीवन वांट टू टेक अ गेस लंजेस में कहाँ चोट आ सकती है? कहाँ आ सकती है? बॉल, आई बॉल्स, यू मीन बॉल्स राइट? भाई वो तो हवा में रहते हैं। आप कौन से टप्पे वाले लंजेस कर रहे हो? वहां चोट कैसे आएगी भाई? आप ये वाला थे ना दुचुक्ष, या तो जब आप कर रहे हो किसी ने पत्थर मार दिया होगा ले तब आ सकती है बॉल में, वहां तो आएगी नहीं भाई। ये तो एकदम लीस्ट प्रोन एरिया है। एंड एनीवन एल्स वांट टू ट्राई? groin, somebody said groin, yes. I'll tell you कहाँ चोट आई भाई। You guys know groin area, this groin area right? Groin area inner thigh, groin area inner thigh। भाई मेरे ना एकदम इसके सेंटर में चोट, एकदम सेंटर। इसको बोलते हैं एडक्टर्स। You guys know एडक्टर्स? एज गार्ड की एड देखी है? रिमेंबर एज गार्ड एड? याद है वो 2 स्लाइडें? ये नहीं तो स्लाइडें नहीं बनती थी उसमें, याद है? जिसमें क्रीम लगती ग्रीन लाइट जल जाती थी। लड़कों को तो पता ही होगा ना, जहां तुम्हारे कच्चे फंस जाते हैं। उनके कच्चे नहीं तो बाइक से उतरते हैं। हाँ जी भैया, चलो भैया चलो। देखा है सड़कों पे लड़के नहीं दिखते थे ऐसे करते बाइक के पास, उनका ट्रंक का कच्चा यहाँ आ चुका होता है। भाई मेरे ना लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में चोट, एकदम सेंटर में चोट। और वो मेरे से बोले क्या हुआ? फालतू स्ट्रिक्ट हो रही मेरे साथ। मैं मैम चोट लग गई। कह रही किधर? मैं कहा इधर। भाई दोनों असिस्टेंट ने एक दूसरे को ऐसे देखा, लुधियाना में कोई पहली बार यहाँ चोट खाया। कह रही यहाँ लगी होगी ना? मैं कहा नहीं, यहाँ है यहाँ। तो कह रही नहीं वही है। मैं कहा मैम मेरे चोट है यार। कह रही हम यही ट्रीटमेंट देंगे, वहां अपने आप पहुंच जाएगा। मैं कहा मैम यहाँ पे माहौल नहीं बनाना है कि आप इधर माहौल बनाओगे मेरे यहाँ इम्पैक्ट पड़ जाएगा। भाई उन्होंने मेरे को लिटरली थाइस पे ट्रीटमेंट दे दी यार। थाइस पे चोट ही नहीं है, वहाँ चोट यहाँ, ट्रीटमेंट यहाँ चल रही है। मेरे को वो लगाया पता, वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। यू गाइस नो इलेक्ट्रोड्स? बेसिकली इंपैक्ट एरिया पे वाइब्रेशंस पास करते हैं ताकि वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाए। ऐसे एक पत्ती सी होती है सिलिकॉन की, उस पर जेल लगा के लगा देते हैं। उसने वो पत्ती पे जेल लगा के मुझे ही दे दिया, कह लो खुद लगा लो। मैं कह रहे मुझे नहीं आता। फिर तो हम लगाएंगे क्या तुम्हारे वहाँ पे? मैं कहा ये कैसा DIY क्लिनिक है? यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई। वो पत्ती पे जेल लगा के मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। कह रही ज्यादा ऊपर मत करो, अगले पेशेंट के यहाँ लगानी है। मैं कहा मैम ये पिछले वाले के कहाँ पे लगाई थी? इस क्लिनिक में कुछ हाइजीन है कि नहीं है? कुछ सही नहीं हुआ भाई। थाइस पे वाइब्रेशन करवा के आया हूँ, थाइस पे वाइब्रेशन। ऐसा लग रहा है वो स्लिम सोना बेल्ट नहीं होती वो चलवाई है मैंने यहाँ पे। कुछ सही नहीं हुआ भाई, बल्कि यहाँ की वाइब्रेशन से मेरे हिसाब से यहाँ की मेरी 2 मसल और खिंच गई और गंदे दर्द में लौटा हूँ वापस। शो करने चढ़ा स्टेज पे, ऑडियंस नहीं बोल दिया उतर जाओ नहीं हो पाएगा आज।
30 मिनट में उतर गया रूम में पड़ा हूँ, होटल रूम पहुंचा भाई। उस दिन किस्मत इतनी खराब मेरी, मुझे ना होटल में अपग्रेड होकर स्वीट मिल गया था। अब स्वीट नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। आज ये नरक था मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है होटल में, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम, यही तो रहता है ना, यही होता नहीं होता है, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम। आज भाई यहाँ पड़ा गद्दा, वहाँ रहा टॉयलेट, बीच में सोफा। किसका बाप लेट रहा सोफे पे? मेरे कमरे में ये फालतू सोफा क्यों लगाया गया है? वो छोड़ो भाई, मेरे रूम और वॉशरूम के बीच में एक शीशा लगा है। शीशे का पर्पस ही नहीं है, क्योंकि वॉशरूम में ऑलरेडी बड़ा शीशा है। क्या पता जो लोग स्वीट में रेगुलरली रुकते होंगे, अपने आप को राजा महाराजा मानते हो, वो शीशा देखते जाते हैं, अभी राजा जी मूतने जा रहे हैं, अभी राजा जी मूत के वापस आ रहे हैं। पता नहीं भाई क्या सीन था, मैं दर्द से पागल हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझना है। रात को 10-11 बज गए, मेरे दर्द ही दर्द बढ़ा जाए एकदम। मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फ़ोन करा, वो ना स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ तो है। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके चोट लग गई है, क्या करूँ? कह रहा भाई टेम्परेरी रिलीफ के लिए मूव या वॉलिनी है तो मार दे। ये जो आपका हो निकला है ना, मुझे बस यही याद नहीं आया, क्योंकि मेरे पे तो चोट हावी हो रखी है, मुझे याद ही नहीं आया कि मूव के और भी चीज़ें होती है उसके साथ। मूव अगर आप यहाँ मारो ना तो भी चलता है। आप सोचो मुझे कहाँ कहाँ मारनी थी। मुझे उस दिन समझ आया मूव की टैगलाइन आ से आ तक क्यों है। मेरे दिमाग चले नहीं इतना जोर, क्योंकि मेरे तो चोट लगी हुई है। भाई मैंने सब उतारा नीचे का अपना, ऐसा उतारा, मैं सीधा लेटा डाविंची कोड की तरह। मुझे पता ये जो 5 लोगों ही समझ आता है। नहीं भाई मैं ऐसे लेटा पूरा, और भाई उस दिन ना मेरे पास मूव की ना ट्यूब नहीं, स्प्रे था। भाई स्प्रे तो और उड़ता पंछी होता है, स्प्रे को नहीं रोक सकते आप। मेरे दिमाग में ऐसे बातें आई नहीं। भाई मैंने मारा स्प्रे, भाई जैसे ही पहली बूंद स्प्रे की यहाँ टकराई ना, मेरी आत्मा निकल के सामने ही खड़ी हो गई। कह रही भाई वाह क्या डिसीजन लिया गौरव जी, पूरा शरीर आत्मा दोनों ही अलग कर दी। अभी आप झेलो, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी। और भाई उस दिन मेरे शरीर ने जो झेला है वो सिर्फ मेरा शरीर ही जानता। मैं बता रहा हूँ, मैंने मारा स्प्रे, वो पूरा स्प्रे फैल के इधर चला गया है। अब मेरी यहाँ दर्द और यहाँ जलन, ऐसा लग रहा है इसे लुल्ली के नीचे लड़ी लगा दियो। मैं बैठ के फूके मारी जाऊं, मैं डायरेक्शन देके फूके मारूं, मुझे कुछ समझ नहीं है करूं क्या। फंसा पड़ा हूं यहाँ पे, पूरा पानी पी चुका हूं, वॉशरूम 1.5 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। रात को 12:30 बजे 32 साल का वैसा का आदमी, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं शीशे वाले एरिया पे पहुंचा, मुझे शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं कहा इस दिन के लिए पैदा हुआ था क्या मैं? अभी लुधियाना में 3 घंटे बाद लोगों ने फोटो खिंचाई, सेलिब्रिटी चाट के सेलिब्रिटी खड़े हुए हैं यहाँ पे। भाई मैं अंदर वॉशरूम गया, एक तो होटल में मग्गे क्यों नहीं होते यार, वरना बंदा मग्गे में पानी भरे डुबो दे, वह क्या दिक्कत है। मुझे पता है ये वाला सबको समझ नहीं आएगा, ये वाला लड़कों में भी उनको समझ आएगा जिन्होंने पेरी पेरी खा के हाँ भाई क्या बोल रहा। भाई मेरी हालत पे हालत खराब, वो समझ नहीं क्या करूं। टूटी नीचे है, वहां मैं झुक नहीं सकता, जले जाए जले जाए। मैंने करा नहीं, मेरे मन में थॉट आया, डोंट जज मी ऑन दिस ओके। मैंने बस सोचा, करा नहीं। वो जो वॉश बेसिन नहीं होते होटलों में, उसमें आप पानी भर सकते हो। मेरा मन करता पानी भर के मैं डुबो दूं, पर फिर मैं ब्रश नहीं कर पाता अगले दिन। इनफैक्ट वहां से वॉश बेसिन तोड़वा के ही जाता मैं वहां से। मैं जानता हूँ भाई कैसे वो दर्दनाक तरीके से मैंने रात में ना एकदम वहां पे लुधियाना में रात बिताई है। अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर पहुंचा चंडीगढ़ मैंने ढूंढा मेल फिजियोथेरेपिस्ट। मैं इसको तसल्ली से हिंदी में बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ। मैं डॉक्टर के क्लिनिक गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको हाथ पकड़ के लगा दिया। 5 सेकंड तो डॉक्टरी शॉप में चले गए। क्या बदतमीजी है ये,
मैंने कहा डॉक्टर साहब समझो मेरे बहुत गंदी चोट लग गई है, मैं कल से परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उस दिन मैंने उनको सब कुछ समझाया एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। ही ऑल्सो अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके साथ। उस दिन उन्होंने क्या करा, मेरे सबको नीचे का उतार दिया, मुझे लिटा दिया और ऊपर तौलिया लगा दिया। उतार दिया, लिटा दिया, तौलिया लगा दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने सही जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, लेफ्ट साइड के सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा दिए। मैंने भी आज पहली बार वो इलेक्ट्रोड वाली मशीन ढंग से देखी होती क्या है। टेंस नाम की मशीन होती है, ऐसे सिलिकॉन की पत्ती सी होती है, उसके आगे जेल लगता है, उसके पीछे लालो काली तार जाती है, वो तार एक मशीन में जाती है, वहां पे टाइमर चल रहा होता है। पर मैंने ऐसी पड़ी हुई मशीन नहीं देखी, मैं तो लेटा हुआ हूँ, तौलिया लगा हुआ है। तो मैंने नीचे झुक के देखा चल क्या रहा है। तो जो मेरा पीओवी आया वो ये था कि मेरे तौलिए के नीचे लालो काली तार जा रही है, 2 तारें तौलिए से निकल रही, वो तार एक मशीन में जा रही है और मशीन में टाइमर चल रहा है। मैं कहा बम लगा दिया क्या, कि इलाज नहीं है फाड़ ही देते हैं, खत्म कर दो, नेस्तनाबूद बहुत कर दो, उड़ा दो सालों को आज। मैं तो भाई पूरा सोच के बैठा था, कुछ भी दिक्कत होगी लाल तार काट दूंगा। एक मेरे को पी सुनाई दिया, खींच दूंगा लाल तार। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए, डॉक्टर आए मेरे पास, कह रहे स्टेबल हो। मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ। मैं क्या, कह रहे वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ। मैं कहा आपको पता नहीं तार कहाँ लगी है। यस डॉक्टर, इफ दैट इज द प्रोसीजर प्लीज गो अहेड। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए, डॉक्टर ने वाइब्रेशन ऑन करी, भाई मेरे किसी ने पहली बार यहां वाइब्रेशन दी है। मैं चोट चाट सब भूल गया। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, मैंने कहा भाई खड़ा ना हो जाए यार। मैं नीचे देख के बातें करूं, मैंने कहा बदतमीजी नहीं होए, तमीज में रहो, तमीज में रहियो, समझ गया ना। खानदानी है तो खानदानी तमीज में रहियो, क्योंकि भाई तौलिए में ऊपर आते तो और गंदा लगेगा यार। डॉक्टर को क्या लगेगा पेशेंट है कि ठरक लेके आया है। आप सोच रहे हो डॉक्टर मुझे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके ओके ओके, रोको इसे। जब तक डॉक्टर अपना तौलिया बचाए, इट्स मैजिक। भाई मैं पूरा फोकस करके लेटा हूं, कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा 5 मिनट हो गए, 5-7 मिनट हो गए, वो वाइब्रेशन होते। डॉक्टर मेरे पास आए, कह रहे स्टेबल हो। मैं कहता बिल्कुल स्टेबल हो। कह रहे फिर वाइब्रेशन तेज कर दूं क्या। मैंने कहा आपने मेरे से टोन में मत बात करो प्लीज, आप थोड़ी देर दूर जाओ, आप मत करो, कुछ मत करो प्लीज। तो यार उन्होंने वाइब्रेशन तेज नहीं करी और मुझे 20 मिनट तक सेम इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन दी। और भाई मेरा खड़ा नहीं हुआ, तो मैं और टेंशन में आ गया यार। मैं कहा डॉक्टर साहब खड़ा क्यों नहीं हो रहा है। अरे अभी कैसी बातें कर रहे हो मेरे से। मैं कहा बातें बूते नहीं, खड़ा करो। कह रही यहाँ पे ये सब नहीं होता है। मैंने कहा आप मेरी टांगे काट दो, ऐसे ही करके भेजोगे आज। मैं तो मुझे क्लिनिक से निकाल दिया यार। फिर मैंने होटल जाके चेक करा तो सब सही था। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? वीर, वीर राइट? VIR, वीर। हाय वीर, क्या करते हैं आप? डायमंड मर्चेंट। यू आर अ डायमंड मर्चेंट। डायमंड मर्चेंट। अरे नीरव मोदी को जानते हो? मतलब पर्सनली जानते हो? बात होती है? भाई आएगा? वो कह रहा भाई तू भी आ जा, एक मैं करवा देता हूँ, 8,000 करोड़ का करा देता हूँ मैं, टेंशन मत ले। सही है वीर जी। आप डायमंड मर्चेंट, क्या आपका मतलब स्टोर है या कैसे होता है डायमंड? यू मैन्युफैक्चर डायमंड। तो आप रईस अमीर आदमी हो मतलब? ठीक ठाक तो नहीं होगे? नहीं अमीर ही हैं आप लोग कौन हो? बेटी और वाइफ? अच्छा वीर जी की वाइफ ना, बच्चों के साथ आए हो, ग्रेट। लाओ लाओ, किसका प्लान था इधर आने का? पापा, पापा जी क्यों कराई आपने मेरी वीडियो तो देखे ही होंगे कुछ ना कुछ। वो NRI का वीडियो देखा ना, NRI को लेके आया। अच्छा NRI का वीडियो देखा, NRI को लेके आया। कौन NRI? आपकी बेटी। ये देखो इंडियन लोगों के पास जितना मर्जी पैसा आ जाए,
इनको जहां मौका मिले ना, हमारे घर वाले भी बाहर ही रहते हैं। इन्होंने चिपका दिया एकदम बातों बातों में, एनआरआई है जी, हमारे लिए कोई टफ नहीं है, हमारे बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं गौरव जी। ठीक है एनआरआई है। क्या किधर किधर पढ़ाई कर रहे हो? कहाँ? बॉस्टन यूनिवर्सिटी। भाई ये तो वैसी लग रही है, आपने वो रील देखी है इंस्टा पे चल रही है, आपने वो इंस्टा पे रील देखी, आई नो दिस, और दूसरा बंदा व्हाई यू टॉक लाइक दैट, बिकॉज आई टॉक लाइक दिस, नो नोबडी टॉक्स लाइक दिस। देखिए ना वो वाली रील आप लोगों ने? Why are you talking like that? Why are you talking like that? Because this is my voice. This is my voice. You have not seen this? अरे it's the most viral thing in last 1 year. आपके पापा ने खुद देखी है। ये खुद ही परेशान है, ऐसे बात करेगी क्या ये? Boston University. I like that only. सही है। कितने टाइम से बाहर हो? What's your name? वैदेही। माँ बाप ने तो वैदेही रखा था। इन्हें वैदेही। कब से बाहर रह रही है मैम ये? 1 ईयर में इतना पकड़ लिया? एक साल में ऐसे भाई 20 साल का इसका मुंबई नहीं आ रहा। ये मैं सोच रहा हूँ मुंबई वाले एक्सेंट को और बाहर के एक्सेंट में 1 ईयर सीधे जाके राइट लेने का। Nice Vaidehi, welcome to the show. What are you studying in Boston University? Advertising and honors. आप लोग घर में हंसी नहीं आती इसकी बातें सुनकर? The thing is, she is not even pretending that she is not making this. नहीं, this is your actual way of talking, right? Oh my God. You picked it up in South Bombay or South Bombay? इतना फर्क पड़ जाता है ना, बस जस्ट बिकॉज वहां पे ऑटो नहीं पहुंचे, इन लोगों ने एक्सेंट ही चेंज कर दिया। पाया सीधे जाके लेफ्ट लेना। Great sir, आप तो ऐसे बात नहीं करते हो क्या? आई गेस आप तो एकदम रेगुलर। एंड व्हाट अबाउट यू मैम? मैम आप योर डॉक्टर एंड PhD इन क्वांटम फिजिक्स। भाई इतनी पढ़ी लिखी ऑडियंस, मेरा दिमाग सा ही फट गया। पता है मुझे तो ये भी नहीं पता क्वांटम फिजिक्स होता क्या है। आई वॉज कॉमर्स विद हिंदी, यू नो। क्या यार, अच्छी फैमिली है नहीं, यहाँ भी पहुंच रहे मेरे वीडियो। भाई तू क्या करता बताइए जरा। इसकी तो शक्ल भी देख रहा है भैया, पता नहीं भैया जिंदगी का। BBA कर रहा हूँ, देखता हूँ लग जाएगी नौकरी तो लग जाएगी। सही यार, इतने कहते हो आपको तो मतलब एवरीथिंग इज गुड। बिजनेस फैमिली एंड एजुकेटेड मॉम। तो आपका पढ़ाई करके हुआ है बॉस्टन यूनिवर्सिटी या डोनेशन? गए डोनेशन गई है थोड़ी ऑन योर ओन? देयर इज नो डोनेशन इन, वहाँ नहीं चलता ऐसे अपना MIT की तरह थोड़ा अंडर सब करो तो सही, अपनी बच्ची है कराओ, क्या दिक्कत है? सही है। यू आर स्टडीइंग एडवर्टाइजिंग एंड ऑनर्स। Like what is honors? Honors is like a specialty education if you're in the top 5% of your college. भाई ऐसे लग रहा है IVR से बात कर रहा हूँ। ऐसे लग रहा है यूरोप घूमने गया हूँ। ना। That's really nice accent, Vaidehi. Guys, welcome to the show, Vaidehi. And आप मैम, आप अभी like you practice? What is your specialization, if I may ask? Electromagnetic energy. कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेजिडुअल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। भाई क्या है ये? मेरा बात किसी को पता है? जाने तो ये देखो, ये है ना, ये है मेरा ऑडियंस। भाई हमें भी समझ नहीं आ रहा, अचानक से PCM याद आ गया। मैं सोचा था कितने टाइम बाद तो गया वो मेरी जिंदगी से बाहर। सही है मैम, इतनी पढ़ाई कैसे कर लिया यार आपने? तो बड़ी ही अच्छी बात है, वेरी नाइस। वो भी उस टाइम पे जब कहाँ पढ़ती थी लेडीज, उस टाइम पे लेडीज पढ़ती थी इतना? नहीं? क्या हो गया?
ये मुंबई में फट जाती है लोग ऐसे चुटकुलों पे. Oh my God, what is he gonna talk about now? You can't talk like that. सही है, nice. Welcome to the show. मैं और भी किसी लोगों से. और भाई तुम्हारा क्या चल रहा है? इनके जो डायमंड आते हैं वो ग्रेड करते हैं. इनके जो डायमंड जाते हैं वो तुम ग्रेड करते हो. तुम जानते हो ही नहीं. नहीं इन जनरल डायमंड जो आते हैं. वी वोट अ जेमोलॉजिस्ट. जेमोलॉजिस्ट. और कहाँ से आई है ऑडियो? क्या भाई IIT में चले गया था क्या मेरा वीडियो? IIT तो नहीं पहुंच गया कहीं? जेमोलॉजिस्ट माने क्या हो गया इसमें? वी ग्रेड डायमंड्स एंड कलर स्टोन्स. ग्रेड मतलब वो फिलहाल के वो आंख में वो लगा के नहीं करते, वो आंख में लगा नहीं रहता है एक वो छोटा सा लेंस लगा के वो सॉर्ट ऑफ. हम माइक्रोस्कोप पे करते हैं. आप माइक्रोस्कोप पे करते हैं. सही है भाई. तो यू वर्क समवेयर और यू हैव योर ओन? No, I am a jeweler out of Nagpur. So I am studying here. What are you studying? Gemology. Gemology. Which college? It is an institute of America. Gemological Institute of America. Gemological Institute of America. And where is it located? BKC. नागपुर में ना इसकी फैमिली ने सबको हल्ला मचा रखा है. अमेरिका इंस्टीट्यूट में है. अमेरिका ही है, बस वो कुर्ला से थोड़ा पहले पड़ता है. ये है भाई असली बोस्टन यूनिवर्सिटी. दिस इज रियलिटी. इसके एक्सेंट में ही कुर्ला है, पता है? इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका. भाई ये तो नाम ही नहीं सुना मैंने कभी. ये कहाँ, किसने खोला इंस्टीट्यूट? इसकी नाम, इसका स्पेलिंग ये तो नहीं AMARICA? अमेरिका. कई बार होता है नाम आगे पीछे कर देते हैं, इंस्टीट्यूट खोल देते हैं. सही है भाई, बढ़िया. ये भी यही पढ़ रहा है भाई अपने. और वो थर्ड वाले भाई भी? नहीं मैं स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ. स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट. इंडस्ट्रियलिस्ट ही हो आप? वो जो लेबर पे अत्याचार करते हैं वो वाले लोग? होने दे इंडस्ट्रियलिस्ट. उड़ा दो गाड़ी से साले को, किसी को पगार नहीं मिलेगी, निकलो यहां से बाहर. इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप? क्या मतलब क्या करते हैं इसमें? सरिया बनाते हैं. सरिया बनाते हैं. सरिया बनाते हो? सरिये मैम, सरिये बनाते हो ना? टीएम का क्या नाम है आपके सरिये का? मतलब सरिये का मतलब आपके जो कंपनी का नाम है. ये तो गलत ही चला गया एकदम. नहीं, आपके सरिया का नाम क्या है भैया? हमारा सरिया नहीं है, हमारा सिल्ली है, छोटी सिल्ली. ये भाई, तो आप तीनों साथ हैं? हाँ जी. आप तो ये कैसे मिले आपको? ये जेमोलॉजिस्ट. तुम अमीर लोग के साथ घूमते हो क्या? तुम्हारा कोई आम आदमी दोस्त नहीं है? ऐसे नॉर्मल दोस्त पकड़ो ना, जिनकी 25,000 महीने की तनख्वाह है. उनको घुमाओ दुनिया. तुम्हारे पास तीनों के पास भी पैसे हैं, क्या दिक्कत है? तुम्हें दोस्त नहीं, दुनिया पे परोपकार करना चाहिए. 25,000 की नौकरी करने आए यहाँ पे फंड मैनेजमेंट में. 25,000 की नौकरी करने आया फंड मैनेजमेंट में? ये देखा, द वॉइस ऑफ पुअर. जहां मौका मिला इंडस्ट्रियलिस्ट. मेरा 29,000 है. इससे बहुत ज्यादा. क्यों भाई, क्यों कर रहे हो भाई? अपने पैरों पे खड़ा होना है. खड़ा हूँ मैं, पैरों पे ही हूँ. नहीं, नॉट फिजिकली पर मतलब आपका इंडस्ट्रियलिस्ट का घर का काम है ना अपना. बट तो क्यों कर रहे हो ये सब नौकरी वोकरी? शौक है भाई. नौकरी का शौक किससे होता है यार? ये देख, ये देश की वर्कफोर्स, ये देख सब आए भाई. हमें बिल्कुल शौक नहीं है यार. वीकडे पे आगे थोड़ा हंसा के भेजते भाई. कंपनी ने सरिया ही दे रखा है. आपके पीछे ही लग रहे भाई. ऑफिस से आया ना, डायरेक्टली ऑफिस से आया. देखो ये होता है भाई, ये शौक है किसी का है? ये शौक है ऊपर तक बटन बंद करके शर्ट पहनने का किसी का? बिल्कुल शौक नहीं है भाई किसी की जॉब वॉब करना. क्यों कर रहे? मत करो यार ये सब. घर पे अगर धंधा है तो जाओ. मेरे को लगता है पूरी जनरेशंस में एक को मेहनत करनी चाहिए. जब एक ने वो मेहनत कर दी तो बाकी उसके मजे मारो ना जिंदगी के, है ना? तुम क्यों लगे पड़े? मैं भी पैरों पे खड़ा हूं.
मेरे घर में अगर इतनी मेहनत पहले हो चुकी होती तो मुझे लगता मैं ये सब करता बकचोदी खा के। मैं क्यों कर रहा हूँ ये? मैं तो पता मेरे को समझ नहीं आता वो लोग क्यों परेशान होते हैं, मतलब वो लोग गाली क्यों खाते हैं? बाप की कमाई पे ऐश करता है तो किसकी करूं भाई? कमा लिया ना बाप ने, है ना, अब ऐश तो मैं ही करूंगा, पापा थोड़ा ना बुढ़ापे में ऐश करेंगे। आई पर्सनली फील दिस सर। एनीवेज आई कम फ्रॉम दिल्ली, नॉट रियली दिल्ली, आई यूज्ड टू स्टे इन वेस्ट दिल्ली। शो स्टार्ट करें, जोक वोक भी सुनोगे ना, ये सब तो चलता रहेगा बीच बीच में, है ना, थोड़ा जोक भी करते हैं यार, कुछ नई चीज यू शुड टेक होम। नहीं, बिकॉज व्हेन यू गो होम विद जोक्स यू हैव न्यू थॉट्स, किसने कुछ नई बातें बताई। व्हेन यू गो होम विद इंटरेक्शन यू कैन नॉट टेल एनीवन कि क्या हुआ शो पे। यू टेल समवन क्या हुआ भाई, बड़ा अच्छा था, मजा आया, क्या बोला भाई, एक को सरिया के लेके बहुत बुरा लगा, हमें तो उसकी चिंता ज्यादा हो रही है। पता नहीं भाई, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया था 25,000 की तनख्वाह पे, पता नहीं, और एक गरीब आदमी ने उसकी मार ली भाई, वो अच्छा लगा। ये हुआ शो पे अच्छा। पर सुनो तो मैं कह रहा हूँ, वैसे ही आपको समझ आ रहा है ना मैं हिंदी बोल रहा हूँ? आर यू हियर विद अस? Hi guys, I hope you like the video. If you like the video, then do subscribe to the channel. इसके अलावा मैं इंडिया का टूर कर रहा हूँ, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, कोलकाता, और उसके अलावा और भी सिटीज बहुत सारी ऐड होने वाली है। उसके अलावा यूरोप टूर कर रहा हूँ सितंबर के अंदर। हम यहाँ पे जो फिलहाल आए हैं, ये है एक स्कॉटलैंड में है फिलहाल, और एक पिकनिक वाले जगह पे आते, जहाँ बारिश हो गई पर पूरा माहौल सेट है, हर तरीके से माहौल सेट है, मतलब कि ये देख लो पूरा। और पीछे हाईलैंड करके गेम्स होते हैं, वहाँ पे हाईलैंड गेम्स जिसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, वो सब है। एनीवेज फालतू इन्फॉर्मेशन है, मेन इन्फॉर्मेशन वही थी जो पहले मैंने बता दी। बट आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट वीडियो मैं इसमें आ रही हूँ तेरे क्लास में। है, अब आ रहे हो क्लास में? हाँ। कोई बात नहीं।